Good morning everyone. So in this class we are going to learn about Wi-Fi security, and we are going to firstly understand what is Wi-Fi, and we are going to see how we can analyze Wi-Fi traffic using Wireshark, and then we are going to see how we can crack the password of a Wi-Fi network, right? And then we are going to see how we can decrypt the traffic, and then we are going to see how we are hacking a Wi-Fi network, a home Wi-Fi network, and then we are finally going to see what are the few steps which we can take to secure our home Wi-Fi networks. So let's move ahead. The first thing is, what is Wi-Fi, right? So Wi-Fi stands for wireless fidelity, and it is a set of protocols that are used by devices to connect to a wireless local area network, or WLAN, right? So it uses, the devices use radio waves to connect to the network, and the network is created using those, and it is based on the IEEE 802.11 specifications. So let's first see what it is about, right? So basically IEEE 802.11 is a part of IEEE 802 set of local area network technical standards. So these are basically like the standards which need to be followed by devices if they are trying to connect to the WLAN or wireless local area network. Like we have the protocols for like HTTP and other for the web interfaces. So for connecting to a wireless local area network, we have this standard 802.11, and here we have all the details, so you can just go ahead and read about these, right? So it typically works on 2.4 gigahertz and 5 gigahertz bands. So basically 2.4 gigahertz and 5 gigahertz are the frequencies of the radio waves which they can use to connect to the networks or communicate in the network, right? We already have seen that Wi-Fi 2G and 5 gigahertz we can see on different networks. So it is about the net band on which they work. Then Wi-Fi is actually a trademark of the Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Alliance is basically a organization which takes care of standard. It actually, whenever a router comes in, a Wi-Fi router, it goes to the Wi-Fi Alliance, and they basically see if they are properly following the standards that are needed for a device to be Wi-Fi, and they can actually then decide whether it is on Wi-Fi or not. And this is their logo, so you can read more about Wi-Fi Alliance from here. So Wi-Fi Alliance is basically the organization which drives the global Wi-Fi adoption and its improvements and evolution, right? So let's understand some of the basic terminologies when we talk about Wi-Fi. So the first one is SSID. So SSID, it stands for the service set identifier, and basically it means that whenever you see a name of a network, right, whenever you try to connect to Wi-Fi networks, you can see the name of the network. So that is basically, it's also known as the SSID of the internet. Suppose there is a Wi-Fi network whose name is home maybe 2.4G, something like that, right? You can configure this as well. So this is basically the SSID of the network. Then we have BSSID, or basic service set identifier, which is actually the MAC address of an access point. And from here we come to access point. So what is access point? Access point is a device which is going to provide the wireless access to a wired network for the Wi-Fi clients. That means in our home routers we know that, so basically the routers work as the access points in most of the home routers, right? So this is the router. So you can see there is one cable that connects to this. There is a power cable, and there is another cable that comes from the service provider which connects here, and then you can basically get the Wi-Fi networks, and then you can connect to it. So here this device is known as the Wi-Fi access point. Why? Because the local area network comes here, and then it makes it a wireless network, so that wirelessly the devices can get connected to this basically network, right? Next, client or station. So any device that is connecting to your Wi-Fi network, any device that is part of a Wi-Fi network, is known either as a client, or you can call it a station as well. Like whatever the routers are there, or the laptops or smartphones, these are all known as the clients or the stations there. Next we have channel, which specifies the particular frequency range in which the communication happens, right? So we know about 2.4 and 5 gigahertz, right? These are the bands on which the Wi-Fi network works. But now in even in this 2.4 gigahertz, इसमें क्या होता है ना, अलग अलग स्पेसिफिक हमने कुछ फ्रीक्वेंसीज चूज करे हैं जिनको यूज करके एक पर्टिकुलर नेटवर्क वर्क करता है. Suppose there is a Wi-Fi network here with a mobile phone
एंड अ राउटर एंड समथिंग, एंड इनको आपस में अगर कनेक्ट करना है, आपस में अगर कम्युनिकेट करना है, सो फॉर दैट दे चूज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। जो अलग अलग चैनल्स में डिवाइडेड फ्रीक्वेंसीज होती है उनमें से एक चैनल को दे चूज इट, कि इस पर्टिकुलर रेंज में, इस पर्टिकुलर चैनल में हम ऑपरेट करेंगे। सपोज दे हैव चोजन चैनल 8, so on this channel they operate, that is the specific frequency set that they are, their frequency that they have set for their communication. So that was about channel. Next we have beacon frame. So beacon frame क्या करता है ना, basically it's a management frame. That means जब डेटा पैकेट्स आप सेंड कर रहे हो, डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हो नेटवर्क में, सो ये एक स्पेशल टाइप का डेटा पैकेट है जो आप सेंड कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, इससे डिवाइसेस बताता है दैट यस आई एम प्रेजेंट इन दिस नेटवर्क, एंड वो अपनी डिटेल्स शेयर करता है, राइट। इट शेयर्स इट SSID और BSSID एंड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की कौन से चैनल पे मतलब वो वर्क कर सकता है। सो दीज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आर सेंड बाय द बीकन फ्रेम। इसको देख के पता चलता है दूसरे डिवाइसेस को कि द डिवाइसेस आर प्रेजेंट इन द नेटवर्क, राइट। सो दैट मीन्स वेन एवर वी ओपन आवर लैपटॉप्स और फोन्स, और हमें मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट करना है, सो एट दैट टाइम वी सी द डिफरेंट नेटवर्क्स, राइट। सो वो नेटवर्क्स हमें दिखते हैं बिकॉज दोज डिवाइसेस आर कॉन्स्टेंटली सेंडिंग दिस बीकन फ्रेम्स, जिसके थ्रू हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि उसका SSID क्या है, BSSID क्या है, एंड ऑल द अदर थिंग्स. So this was the basic idea and understanding of Wi-Fi and the basic terminologies that are related to Wi-Fi. So moving ahead, we all know that what is traffic capture, right? We have used Wireshark, and we know that traffic capture means to intercept and the logging of the data packets that are being transmitted over a network. That means कि suppose there is a connection. Suppose there is a Wi-Fi router here and there is a मोबाइल डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड टू इट. सो जब इनके आपस में कोई डेटा पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहा है, डेटा एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन दिस राउटर एंड दिस फोन, दिस एक्सेस पॉइंट एंड दिस फोन, सो दैट मीन्स अगर मैं इसको इंटरसेप्ट करता हूँ, अगर यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इसको अगर मैं इंटरसेप्ट कर पाता हूँ और उसको एनालाइज इंटरसेप्ट कर पाता हूँ, सो दैट इज़ माई ट्रैफिक कैप्चर. एंड वी कैन डू इट फॉर डिफरेंट पर्पसेज, राइट. आइदर आई हैव टू मॉनिटर दैट व्हाट आर द डेटा ट्रैफिक्स दैट आर बीइंग सेंट, और आई हैव टू मेक सम लॉगिंग ऑफ द डेटा, कि मुझे लॉग रखना है कि क्या क्या डेटा यूज़ हो रहा है, एंड ऑल दोज थिंग्स. So now let's see how we can capture the Wi-Fi network, right? So let's understand that why do we have to understand or learn how we can capture Wi-Fi network or Wi-Fi traffic. Because अगर मैं normally connect करने जाऊँगा, so here we are currently, I am on I have opened my Wireshark, right, and यहाँ पे जो पहला network interface है that is of Wi-Fi, that means I am connected to Wi-Fi. So अगर मैं Wi-Fi के interface पे जाता हूँ, so you can see these are all the normal डेटा पैकेट्स दैट आर सेंट, राइट. कि ईथरनेट यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, इट इज़ नॉट शोइंग मी एनीवेयर वाईफाई. या फिर बीकन फ्रेम्स वगैरह जो मैं डिस्कस कर रहा था कि देयर आर बीकन फ्रेम्स, जिससे डिवाइसेस बताता है कि यस आई एम दिस, आई हैव दिस पर्टिकुलर आईडी, एक्सेस पॉइंट नेम. सो वो सब मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट. सो टू सी द एक्चुअल वाईफाई ट्रैफिक विच द डिवाइसेस सेंड, उसको देखने के लिए वी हैव टू डू सम एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस. सो बेसिकली अगर मुझे अच्छे से वाईफाई के ट्रैफिक को समझना है, वाईफाई के ट्रैफिक को अगर मुझे कैप्चर करना है, सो उसके लिए फर्स्टली यू नीड अ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन विच यू विल डू द वर्क्स, राइट. सो मे बी सो आई हैव चूजन काली लिनक्स हियर फॉर माई वर्क. एंड उसके अलावा हमें एक वायरलेस अडेप्टर चाहिए. सो इन आवर PCs वी हैव वायरलेस अडेप्टर्स, राइट, बट वायरलेस अडेप्टर के ऊपर भी हमें एक एडिशनल फीचर चाहिए विदाउट विच वी कैनॉट डू दिस वर्क, राइट. सो जो डिवाइसेस हमारे लैपटॉप्स में कनेक्टेड होता है, जिसके यूज़ करके हम लोग वाईफाई पे कनेक्ट करते हैं, दोस जनरली आर सेट इन मॉनिटर मोड, एंड वेरी लेस डिवाइसेस आर देयर जिस पे हम लोग सो दे आर बेसिकली सेट इन मैनेज्ड मोड, राइट. तो जो भी वायरलेस हमारे पास अडेप्टर्स है वो मैनेज मोड में आते हैं, एंड देयर ओनली पर्पस इज टू कनेक्ट टू द वाईफाई नेटवर्क, एंड दैट्स इट, राइट. कि वो हमें शो करेगा कि क्या क्या नेटवर्क्स अवेलेबल है हमारे पास, एंड मैं उस पर कनेक्ट कर सकता हूँ. बट टू कैप्चर द ट्रैफिक और टू एनालाइज द ट्रैफिक वी नीड अनदर मोड दैट इज नोन एज द मॉनिटर मोड. सो हमें एक वायरलेस अडेप्टर चाहिए जो कि सपोर्ट करेगा मॉनिटर मोड को. मोस्टली वायरलेस अडेप्टर सपोर्ट नहीं करता, एंड जो भी आपके लैपटॉप्स वगैरह में इनबिल्ट होता है उनमें भी सपोर्ट नहीं होता है जनरली. So in that case
So this is going to be the setup for which we are learning today, right? पहले तो मेरा Kali Linux machine है, it can be a virtual machine or it can be a booted system. So I am using a virtual machine, virtual Kali Linux machine here, and उसको मैंने कनेक्ट किया है एक वायरलेस अडेप्टर के साथ, बिकॉज मेरे डिवाइस पे जो इनबिल्ट वायरलेस अडेप्टर है इट डज नॉट सपोर्ट द मॉनिटर मोड, इट इज़ इन मैनेज मोड ओनली. सो मैंने उस पर कनेक्ट किया है एंड आई हैव अ डिफरेंट वाईफाई नेटवर्क विच इज़ ऑन दिस एंड दिस इज़ द बेसिकली द नेम ऑफ द वाईफाई एक्सेस पॉइंट एंड दिस इज़ द नेटवर्क देयर, राइट. सो नाउ अगर मुझे चेक करना है कि मेरे पास जो डिवाइसेस जो अडेप्टर्स हैं वो मॉनिटर मोड पे है या मैनेज मोड पे है, फर्स्ट वी नीड टू चेक इट, राइट. सो टू चेक इट आई कैन जस्ट यूज़ दिस कमांड IW लिस्ट एंड उससे मुझे जो भी वायरलेस अडेप्टर्स हैं मेरे पास प्रेजेंट उनका ऐसे लिस्ट में फॉर्म में आ जाएगा अबाउट एंड डिटेल्स अबाउट देम, राइट. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हियर द डिवाइस दैट आई हैव इट इज़ हैविंग मॉनिटर मोड, राइट. ये अभी मॉनिटर मोड में है. अगर आपके पास जो वायरलेस अडेप्टर है वो अगर मॉनिटर मोड पे सिलेक्टेड होगा एट दैट टाइम यू विल सी मॉनिटर हियर, अदरवाइज यू विल सी मैनेज्ड रिटन हियर, राइट. ऊपर मैनेज सिलेक्टेड है तो ये येलो में होता. सो ये सपोर्ट करता है मैनेज मोड को भी मॉनिटर मोड को भी, बट अगर यहाँ पे ये मॉनिटर मोड सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो इन दैट केस यहाँ पे मॉनिटर मोड नहीं लिखा हुआ था आपके पास. So suppose if you don't have the your internal wireless adapter does not support monitor mode, so in that case you have these kind of options. These are the external wireless adapters जिनको आप using USB port you can plug them there और उसके बाद आप इनको use कर सकते हो to monitor the traffic. सो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मॉनिटर मोड होता है एंड मैनेज मोड होता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट बोथ ऑफ दीज आर एंड व्हाट आर द डिफरेंस, राइट. सो मैनेज मोड में क्या होता है ना, ये बस आपको पैकेट्स को कैप्चर करेगा बट इट विल नॉट एक्चुअली प्रोवाइड यू विद ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द वाईफाई, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है जो भी डिटेल्स होती है जो वाईफाई से रिलेटेड जो पैकेट के हेडर्स होते हैं उनको वो सेंड नहीं करता सिस्टम में आपके मशीन के पास, राइट. एंड इनमें क्या होता है जो मॉनिटर मोड होता है यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें मिलती है, आप पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हो, राइट. एंड देन यू कैन एनालाइज द नेटवर्क एंड डू सिक्योरिटी टेस्टिंग रिलेटेड टू इट. एंड इसमें क्या होता है कि वो स्कैन कर रहा होता है हर टाइम पे कि चैनल्स को सुन रहा होता है कि व्हाट आर द डेटा ट्रैफिक्स दैट आर कमिंग इन. एंड in case of managed mode it only checks for the available networks and its task is only to connect to the network. That's the basic idea. सो नाउ यू कैन सी द डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन मोड जो कि है मेरे डिवाइस पे वो है मैनेज मोड का, राइट. सो IW dev करके मैं चेक कर सकता हूँ कि ये कौन से मोड में ऑपरेट कर रहा है एंड दैट इज़ मैनेज मोड हियर. सो नाउ आई नीड टू चेंज इन टू अ मॉनिटर मोड सो दैट कि मैं एक्टिवली स्कैन कर पाऊँ वाईफाई नेटवर्क को एंड देन आई नीड टू कैप्चर द वाईफाई ट्रैफिक. सो उसके लिए एक टूल आता है दैट इज़ AirCrack-NG. इट्स बेसिकली अ सूट ऑफ डिफरेंट टूल्स विच आर यूज्ड टू असेस द वाईफाई नेटवर्क एंड वाईफाई नेटवर्क की सिक्योरिटी असेस करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं. एंड बेसिकली ऑल आर कमांड लाइन टूल्स एंड इसका मेन फोकस होता है in these things that to monitor the Wi-Fi network for attacking the Wi-Fi network if needed and to test and crack any of the encryptions that are present in the network, right. So हम देखेंगे एक एक करके कि tools को कैसे use करते हैं which are provided by AirCrack-NG and this is the main documentation. You can go and read about the different tools that are listed here. So अगर मुझे AirCrack-NG इंस्टॉल करना है तो you can simply install it using sudo apt install AirCrack-NG, right, and then it will be installed in your system. उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मैंने देखा कि मेरा जो सिस्टम है वो मैनेज मोड में है. सो मुझे अभी उसको मैनेज मोड से पहले मॉनिटर मोड में लाना है सो दैट मैं वाईफाई की जो एक्चुअल ट्रैफिक्स होती है उनको मैं देख सकूँ. सो फॉर दैट आई एम डूइंग sudo airmon-ng start WLAN 0. सो इसको समझते हैं. So AirMon-ng is the tool from the AirCrack-NG suite that we already downloaded and इसको यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मेरा इंटरफेस था WLAN 0 जहाँ पे वायरलेस अडेप्टर इनेबल्ड है, राइट, जो मेरा वायरलेस अडेप्टर का इंटरफेस है उस पर मैं जाके मॉनिटर मोड स्टार्ट कर रहा हूँ यूजिंग दिस पर्टिकुलर कमांड. नाउ व्हेन वी स्टार्ट इट विल फाइंड आउट कि यहाँ पे कुछ सर्विसेज जो चल रही है सिस्टम में दे माइट इंटरफेयर विद दिस. सो उसके लिए क्या होगा, मुझे सबसे पहले इन प्रोसेसेस को क्लोज करना होगा. So to close those we can use the airmon-ng check kill command. इसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या क्या प्रोसेसेस थे and we can easily kill it.
राइट, एंड देन यू कैन अगेन रन इट, और उससे हम चेक कर सकते हैं कि अब कोई और प्रोसेस बचा है या नहीं टू किल. उसके बाद वंस ऑल द प्रोसेसेस आर टर्मिनेटेड इट विल टेक योर सिस्टम इनटू मॉनिटर मोड, राइट. आपका जो वायरलेस लैन है उसको मॉनिटर मोड में लेगा एंड इट विल जस्ट क्रिएट अ न्यू इंटरफेस देयर एंड इट विल नेम इट एज WLAN MON. कैन सी हियर. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये चैनल 10 में ऑपरेट कर रहा है एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी रेंज देयर 2457 मेगाहर्ट्ज, राइट. सो नाउ अब मुझे अगर इफेक्टिवली ट्रैफिक कैप्चर करना है तो हमने देखा था कि जो भी अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं वो अपने अपने चैनल्स में ऑपरेट करते हैं. हमने चैनल्स के कॉन्सेप्ट में समझा था कि दे आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें वो ऑपरेट कर रहे हैं. सो फॉर दैट हमें क्या करना होगा, जो भी मेरा टारगेट नेटवर्क है उसके चैनल पे मुझे स्विच करना पड़ेगा, राइट. सो टू डू दैट यू कैन use the sudo aerodump ng and then you choose this particular मॉनिटर मोड वायरलेस इंटरफेस. जिससे क्या होगा कि हमें लिस्ट हो जाएंगी कि अलग अलग जो यहाँ पे एक्सेस पॉइंट्स हैं उनकी क्या क्या चैनल्स हैं, राइट. सो देयर आर डिफरेंट एक्सेस पॉइंट्स एंड दिस इज द टारगेट मशीन, द टारगेट एक्सेस पॉइंट दैट वी आर लुकिंग फॉर, TP-Link D5E2. एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इट इज़ ऑपरेटिंग ऑन चैनल 8. सो सिंस इट इज़ ऑन चैनल 8 तो अब मुझे चैनल 8 पे स्विच करना होगा सो दैट आई कैन मॉनिटर इट्स ट्रैफिक. सो अगेन sudo iwdev कमांड यूज़ करेंगे हम. वहाँ पे हम उसके बाद वायरलेस अडेप्टर का नाम सेट करेंगे विच इज़ WLAN 0 mon. एंड आफ्टर दैट मैं चैनल सेट कर रहा हूँ चैनल 8 पे. सो जब आप चैनल 8 पे सेट करोगे उसके बाद अगेन इफ़ यू यूज़ द iwdev कमांड यू कैन सी इट इज़ ऑन चैनल 8 एंड जबकि अर्लियर इट वॉज ऑन चैनल 10 पे था पहले एंड नाउ वी हैव चेंज्ड इट टू चैनल 8. सो नाउ आई कैन properly monitor and analyze that Wi-Fi traffic on that particular network. सो अभी हमें ट्रैफिक कैप्चर करना है. सो फॉर दैट वी विल सिंपली ओपन द वायरशार्क सॉफ्टवेयर एंड उसके बाद मैंने करेक्ट अपना वायरलेस मोड चेंज करना है, राइट. हमें करेक्ट इंटरफेस यहाँ पे सिलेक्ट करना है दैट इज़ WLAN 0 mon. एंड वंस वी हैव सिलेक्टेड दैट यू कैन सी कि यहाँ पे अलग अलग ट्रैफिक्स आपको आते रहेंगे एंड यू जस्ट नीड टू कैप्चर इट एंड देन यू कैन स्टॉप इट आफ्टर 3 to 4 minutes बिकॉज 3 to 4 minutes और 5 minutes में आपके पास काफ़ी हद तक ट्रैफिक आ जाएगा टू एनालाइज. So once that is done, you can go Control Shift S or you can just simply save it as a name of the file, right. मैंने यहाँ पे Wi-Fi traffic नाम से save किया है and here I have saved it as a PCAP new generation file type, right. So once the file is saved, you can then again navigate and open the PCAP file. And PCAP file open करने के बाद यहाँ पे आपको option मिलता है wireless का. So let's see that. सो हियर इज़ माई पैकेट कैप्चर एंड यहाँ पे अगर मैं वायरलेस पे जाऊँगा सो ऐसे जाके ना मैं वायरलैन ट्रैफिक को चेक कर सकता हूँ कि कौन से डिवाइसेस हैं वाईफाई नेटवर्क पे एंड व्हाट आर द नेम्स एंड द BSS ID दैट इज़ द मैक एड्रेसेस. एंड यहाँ पे दिस पर्टिकुलर इज़ द TP-Link अडेप्टर दैट आई एम लुकिंग फॉर, राइट. तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 81% जो पैकेट्स है वो यहीं से आ रहे हैं and we can also take out some more details about it. So this is what we've done, right. We have opened the traffic. और उसके बाद जब मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ यहाँ पे डेस्टिनेशन में भी मुझे उसका सेम नाम वहाँ पे शो हो रहा है एंड आई कैन सी ऑल द डिटेल्स, राइट. सो लेट्स सी व्हाट आर द बीकन फ्रेम्स दैट आर हियर. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स हैं अलग अलग, राइट. सम वर फॉर TP-Link, some are for AirSpan and यहाँ पे राइट साइड पे इन्फो में वी कैन सी दैट दीज आर ऑल बीकन फ्रेम्स, राइट. सो सो यहाँ पे मैं कोई भी अगर बीकन फ्रेम पैकेट को ओपन करता हूँ एंड इफ आई गो देयर सो दिस इज़ द बीकन फ्रेम फ्लैग, राइट. और ये मैनेजमेंट टाइप का पैकेट है.
So here you can see, we can see the receiver's address, and that is broadcasted because ये broadcast है, and we can find some details about it from here. So we can also see some of the beacon interface and the capability information, right? यहाँ पे मुझे अलग अलग information मिलता है. So here it is saying that the transmitter is an access point, and there are other details as well. BSS ID यहाँ पे mentioned है, and all the details. So beacon frames के साथ हमें ये types के information मिल रहे हैं, right? That these are the broadcast address है, ये तो source and destination address है. Then we have the BSS ID, which is the MAC address of the device. नेक्स्ट वी कैन जस्ट सिंपली अप्लाई अ फिल्टर ऑन इट, राइट? कि अगर मुझे अप्लाई फिल्टर करना है सोर्स एड्रेस पे कि आई वांट टू फिल्टर इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एड्रेस, आई कैन डू दैट, राइट? WSN. और वहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने HTTP के ट्रैफिक का फिल्टर किया जस्ट टू सी कि मैंने अगर कोई HTTP का ट्रैफिक सेंड किया था, एंड आई कैन सी देर इज़ नो ट्रैफिक दैट आर अवेलेबल हियर. सो बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या है ना, बिकॉज द ट्रैफिक इज ऑल इनक्रिप्टेड. ये जो वाईफाई नेटवर्क है ये ओपन नेटवर्क नहीं है. सो जो भी ट्रैफिक है वो एनक्रिप्टेड है, एंड वी कैन कंफर्म दैट द ट्रैफिक इज एनक्रिप्टेड बाय दिस. सो EPOL प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, which stands for Extensible Authentication Protocol over LAN. एंड इस प्रोटोकॉल को यूज़ करके वी कैन सी देर इज़ अ 4-way हैंडशेक प्रोटोकॉल, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ कीज़ एक्सचेंज हुए हैं यूजिंग विच द ट्रैफिक इज़ बीइंग इनक्रिप्टेड. जैसे हमने ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग हैंडशेक प्रोटोकॉल्स में देखा था, राइट? सो यहाँ पे भी, यहाँ पे दिस इज बेसिकली द सोर्स, दिस इज आवर एक्सेस पॉइंट. सो यहाँ पे एक्सेस पॉइंट ने फर्स्टली इट सेंड a key to the destination, and then after that it got some response from back from it, and finally they have established a key जिसको यूज़ करके इन्होंने ट्रैफिक को encrypt कर दिया है. दैट्स वाई हम अगर सर्च कर रहे हैं कोई भी नॉर्मल नेटवर्किंग, so I cannot see anything, right? Even in this one, if I go and try to filter by TCP, I cannot see anything. So that is the problem. So that means the traffic is encrypted. तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, राइट? So let's see how we can do it. सो बेसिकली ओपन वाईफाई कनेक्शन में क्या होता है, हम यहाँ पे हमने देखा कि देर वॉज अ 4-way हैंडशेक प्रोटोकॉल जिसको यूज़ करके कुछ इनक्रिप्शन, एक इनक्रिप्शन की डिराइव किया गया जिसको यूज़ करके ट्रैफिक को इनक्रिप्ट किया गया था. बट इन केस ऑफ ओपन वाईफाई नेटवर्क, जो डिवाइस होता है वो कनेक्ट करने का ट्राई करता है एक एक्सेस पॉइंट से, वो एक सिंपल ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट सेंड करता है जिसके रिस्पॉन्स आता है कि जस्ट इसको एक्नोलॉज करने के लिए दैट इन द ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट इट जस्ट आस्क दैट आई वांट टू कनेक्ट टू द नेटवर्क, एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स में आता है कि येस यू कैन कनेक्ट. एंड वंस ये एक्नॉलेजमेंट हो जाता है ना, आफ्टर दैट यूजिंग दिस एसोसिएशन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दे गेट कनेक्टेड टू इट, एंड आफ्टर दैट दे कैन सेंड डेटा, राइट? तो यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सो यू कैन ईजिली इंटरसेप्ट इट. बट इन आवर केस वी हैव ऑलरेडी सीन कि यहाँ पे पहले कीज जनरेट हुए, एंड आफ्टर दैट द डेटा इज ट्रांसमिटेड इन अ एनक्रिप्टेड फॉर्म. सो बेसिकली हमें अब क्रैक करना पड़ेगा इस वाईफाई को, which means we have to take an unauthorized access over the wireless network through exploiting vulnerabilities, right? To intercept data or to gain the network access. So let's see how we can do that. सो बेसिकली जब हम ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करने की बात करें या फिर क्रैक करने की भी बात कर रहे हैं ना, दैट मीन्स कि जब पहले मुझे नहीं दिख रहा था नेटवर्क्स में जो HTTP के प्रोटोकॉल्स है या फिर जो डेटा लेवल पे जो हो रहा है सेंड, सो उसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ आफ्टर दैट. So now let's see how we can hack a Wi-Fi network. So firstly मैं अपने Kali Linux VM के अंदर हूँ, and now I have just opened the CLI tool command line, and मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास already Wi-Fi packet capture present है. So I'll just simply open it using Wireshark, and I will open it from here. So मैंने जब इसको ओपन किया, I can see there are different protocols of the type 802.11, and let's see what are the WLAN protocol traffic, right? So
हियर वी आर, एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे टीपी लिंक का चैनल नंबर यहाँ पे मिल रहा है कि चैनल 4 पे ये ऑपरेट कर रहा है, एंड द SSID इज D5E2. सो नाउ मैंने क्या किया, मैंने इसकी BSSID दैट मीन्स जो मैक एड्रेस है उसको यूज़ करके फिल्टर किया है, सो दैट ऑल द requests are either coming from it or going into it, right? So ये इसका BSSID है and the name of the access point, and now let's try with another filter that is HTTP. अब देखते हैं कि HTTP ट्रैफिक यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा because it is already encrypted. TCP भी try किया, TCP is also not available, so that means it is encrypted traffic. So now let's try to crack the network. So मैंने एयर क्रैक NG हेल्प यूज़ कर सकते हो, so that you understand कि क्या क्या अलग अलग टूल्स आप यूज़ करके कर सकते हो, right? And you can check these are the different options that are present here. And here what we are going to do is that हम इस particular option को use करने वाले हैं, so to crack the WEP or WPA/PS के cracking option. So these are the different protocols that are used to secure a Wi-Fi network, the different encryption based protocols. So इसको crack करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो तीन options है, right? Either I can use the W option to give a path to a word list or the file names जिसको use कर सकते हैं. Either मैं एक particular file का path दे सकता हूँ to create a new session, and then there are different things. So we are going to use the W option. मेरे पास एक word list already present है, तो मैं उस particular word list को use करूँगा to crack the password. So now we are just going inside it, and this is basically the word list which is present by default in your Kali Linux machines, right? So you can just simply copy it into your particular folder जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, just for so that it is easy for us to use. So I'm just copying it there, and you can see it is in the zipped form, right? तो हमें उसको अभी extract भी करना पड़ेगा firstly. So now we'll just launch a new instance, and there we will just open and we will just unzip the file first, क्योंकि ये zip form में है, so we won't be able to use the word list. So I'm using gunzip tool, and once I have unzipped it, after that I can see this is the text file, और मैं इसको cat करके read भी कर सकता हूँ that there are so many words that are present there, and maybe जो उसका password है उस Wi-Fi network का, it might be part of this list as well. So now I'm using the aircrack NG tool, and then I'm going to use the W option. उसके बाद मैं इस पे path डाल दूंगा. Since मेरा current directory है Wi-Fi security जिसमें current directory में present है, so that's why I did not have to give the path of it. And उसके बाद मैंने packet capture file दिया, and you can see it is unsupported format because it is not a PCAP, it is the PCAP NG or new generation file. So we have to be careful कि जब हम export करेंगे इस file को, it should be in the .pcap format. So we can just again export this file from here. We can just save it as a .pcap file. So we will simply save it as .pcap file. We'll change the file type from here. So यहाँ पे मैंने file type change किया and I have named it as pcap. Once you have done that, you can simply go and you can start the attack, right? तो यहाँ पे मुझे अलग अलग डिवाइसेस जो कि थे उस वाईफाई पैकेट कैप्चर फाइल में मुझे दिखा, राइट? एंड नाउ आई नीड टू टारगेट सिलेक्ट द टारगेट, राइट? कि मुझे कौन से पर्टिकुलर इसमें से कौन सा जो डिवाइस है, कौन सा क्लाइंट है, उस पर एक्सेस करना है, उस पर अटैक करना है. सो दिस इज द सीरियल नंबर, सीरियल वाइज यहाँ पे मेंशन होता है इन द लिस्ट, एंड दिस इज द पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट दैट आई एम टारगेटिंग, राइट? सो नाउ so now I'll just choose the number 39 here, and एक बार number 39 we have chosen. So let's select this index 39, and
अब क्या करेगा, उसने 39 इंडेक्स के ऊपर जो भी वर्ड लिस्ट मैंने प्रोवाइड किया था उसके साथ एक एक वर्ड्स के साथ उसने ट्राई किया उस पासवर्ड को यूज़ करके कि इफ़ इट कैन जनरेट द करेक्ट की फॉर द एनक्रिप्शन। एंड उसने फाइंड आउट किया कि अगर मैंने पासवर्ड जो यहाँ पे किया है दिस इज़ द एक्चुअल की, जिसको यूज़ करके ना मास्टर की एंड ट्रांजिएंट की यूज़ करके इट फाउंड दैट दिस इज़ द एनक्रिप्शन की देयर। सो नाउ वंस आई हैव फाउंड आउट कि ये पासवर्ड था उसका, सो नाउ आई कैन जस्ट गो अहेड। अब मुझे दोबारा वायरशार्क पे जाना है। कैन सो अब मैं एक बार फिर से वायरशार्क पे जब मैं आ जाता हूँ ना, यू कैन गो टू एडिट ऑप्शन एंड यहाँ पे जाके मुझे प्रेफरेंसेस पे जाके चेंज करना है कुछ। सो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स मुझे सिलेक्ट करना है, सो वी हैव टू सिलेक्ट 802.11। सो हियर यू कैन जस्ट सिंपली गो अप एंड यहाँ पे मुझे चूज़ करना है 802.11 एंड यहाँ पे मुझे ऐड करना है की टाइप। सो यहाँ पे WPA पासवर्ड है, राइट, मुझे पासवर्ड मिल गया इसका। सो आई जस्ट गिव द पासवर्ड हियर एंड वंस आई हैव एंटर्ड द पासवर्ड, उसके बाद पासवर्ड की था, उसके बाद जो है TP लिंक। सो दिस इज़ द डिवाइस नेम, तो जो एक्सेस पॉइंट का नाम है उसको भी मुझे एग्जैक्टली मेंशन करना होगा। सो हियर यू कैन फाइंड इट आउट, it was TP link and then there was a number, right, D5E2। so इसको यहाँ पे मुझे मेंशन करना है एंड आपने यहाँ पे एक बार मेंशन कर दिया। सो नाउ इट हैज़ गॉट द डिक्रिप्शन की, राइट। सो अब वो ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करके शो कर सकता है। so now if I try to filter it using the WLAN, I can see the normal Wi-Fi traffic, and if I try to see any HTTP or TCP protocol, now it is visible to us, right? Now we can see, and क्योंकि ये HTTP पे है तो that means it is a plain text protocol, so यहाँ पे मुझे जाके उसका text भी दिख जाएगा, content अगर कुछ अगर load हो रहा होगा, so we can also see that as well, right? So here you can see the HTML code also is visible to us once we have cracked the Wi-Fi network. So basically from here we can try out with other devices as well। जैसे मैंने एक और device use किया and उसका HTTP देख रहा हूँ, so here there is no HTTP traffic from that device। so we can see the content is also here from another device कि यहाँ पे कुछ content send हुआ था, right? so we have got some TCP streams as well। so इसमें से हम देख सकते हैं अब कि अगर कोई data transfer हुआ था, like कोई image वगैरह अगर send हुआ था, so maybe we can also export that as well। so that is how you can actually hack a Wi-Fi network। basically the just to summarize the steps, firstly you have to go to the aircrack-ng tool। इसको आप help use करके आप अलग अलग commands देख सकते हो, क्या क्या options आप use कर सकते हो with it, right? and then you need to give it, just install the aircrack-ng if it is not installed already, and then आप यहाँ पे आपको word list find करना है। अगर आपके पास कोई दूसरी word list आई है तो उसको भी आपको बस वो फाइल यूज़ करना है .txt फाइल। एंड फाइनली यहाँ पे जाके आप मैंने कॉपी कर लिया था उस फाइल को, एंड आफ्टर दैट क्योंकि मैंने जिप फाइल यूज़ किया था तो मैंने उसको अनजिप किया एंड देन प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको लाया मैंने। एंड आफ्टर दैट आई नीड टू सेव इट एज अ .pkf फाइल। अगर आप पहली बार में जब पैकेट कैप्चर को एक्सपोर्ट कर रहे हो, इवन इन दैट स्टेप ऑल्सो यू कैन सेव इट एज अ नॉर्मल .pkf फाइल। once that is done you can just give the path to your password list using the w dash w option, and उसके बाद जो पैकेट कैप्चर फाइल है उसका पाथ देके finally you can get the key in this way, right? उसके बाद हमें edit option पे जाना है, right? here in the edit option you need to go to the preferences, and after that यहाँ पे अलग अलग protocols आपको show हो रहे होंगे। out of those you need to select the IEEE 802.11 option, एंड उसके बाद जो भी इसकी डिक्रिप्शन कीज़ है ना वहाँ पे आपको एडिट करके अपना की आपको इनपुट करना है, राइट? हियर लाइक वी हैव डन हियर, एंड यहाँ पे प्लस करके आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट करके आप माइनस कर सकते हो अगर कोई प्रीवियसली यूज्ड की है वहाँ पे ऑलरेडी। एंड देन फाइनली आप जब उस पर फिल्टर यूज़ करोगे, राइट, अगर मैंने HTTP फिल्टर यूज़ किया तो मुझे HTTP के ट्रैफिक दिख रहे हैं, अगर मैं TCP करूँगा तो आई कैन सी द TCP ट्रैफिक एज वेल। सो नाउ हाउ कैन वी कीप आवर होम वाईफाई सेफ, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास एक वर्ड लिस्ट था एंड मैंने aircrack-ng टूल यूज़ किया एंड उस टूल को यूज़ करके मैंने बहुत ईजिली क्रैक कर लिया उसका पासवर्ड, राइट?
सो नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि मेनली जो वाईफाई के होम वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं उनमें जो एक्सेस पॉइंट्स होते हैं उनका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो हम चेंज नहीं करते, वी कीप यूजिंग द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, राइट। अगर वो एडमिन एडमिन है तो वो, या फिर कोई भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हम यूज़ कर रहे होते हैं। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी डोंट यूज़ द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, हमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स को चेंज करते रहना है। एंड उसके ऊपर आता है WPA2 और WPA3 इंक्रिप्शन, जो कि मॉडर्न प्रोटोकॉल्स है जो और ज़्यादा अच्छी इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। सो वी कैन यूज़ दैट। एंड उसके बाद आपको फर्मवेयर्स को अपडेट करते रहना चाहिए, जो भी आपके एक्सेस पॉइंट्स हैं उनके फर्मवेयर्स को आपको अपडेट करते रहना है। एंड यू कैन यूज़ अ स्ट्रॉन्ग वाईफाई पासवर्ड जिसको ईजिली कोई भी डिक्शनरी अटैक के थ्रू एक्सपोज ना कर पाए। एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो यूज़ फायर वॉल्स, यू कैन एनेबल फायर वॉल जिससे कि प्रोटेक्टेड रहेगा आपका नेटवर्क। एंड देन यू कैन कीप रेगुलरली चेकिंग द कनेक्टेड डिवाइसेस कि कोई ऐसा डिवाइस तो नहीं कनेक्ट हो गया जो कि अननोन है, राइट। फॉर इन केस ऑफ योर होम नेटवर्क, you know that what are the different devices that are getting connected to it. So those things you have to be careful of. So this is the activity for today's class. You need to analyze the given Wi-Fi packet capture file, and हमने यहाँ पे फाइल आपको प्रोवाइड किया है पैकेट कैप्चर का, राइट। सो दैट यू हैव टू यूज़ इट। एंड आफ्टर दैट यू नीड टू ओपन इट ऑन वायरशार्क। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि क्या SSID है वहाँ पे, जो एक्सेस पॉइंट प्रोवाइडेड है उन एक्सेस पॉइंट्स का क्या SSID है, क्या BSSID है उस एक्सेस पॉइंट का। एंड फाइनली यू हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट कि कौन से चैनल में ऑपरेट कर रहा है वो एक्सेस पॉइंट। एंड देन आपको फाइंड आउट करना है कि क्या सिक्योर्ड है या फिर वो अनसिक्योर्ड। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द हैंडशेक प्रोटोकॉल दैट वाज बीइंग यूज्ड देयर। And finally you have to decrypt the traffic if it is encrypted, then you have to decrypt the traffic and find out any HTTP packets that were sent। और उसमें अगर कोई भी सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रहा है ना, जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, तो उसमें जिस सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रहा है यू हैव टू फाइंड आउट द IP एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्वर। So these are the activities for today. Once you've done this, you can join the one-on-one session and then you can connect with me and you can show me the activities as well.